Good morning, students. Good morning, students. Welcome you all in civics period. Okay. Today we have to learn lesson number 3 of civics, that is features of the constitutions. What do you mean by features? Features means characteristics or highlights. Okay. Let us see the special characteristics and vaishishte of the constitution. In the last two lessons, page number 72. Okay. Page number 72 of your history book. In the last two lessons, we studied how our constitution was made. हमने ये पढ़ा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से तैयार हुई है. कॉन्स्टिट्यूशन यानी राज्य घटना. ओके. We studied its preamble. Preamble means preface and understood terms like sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Okay. और हमने क्या पढ़ा? We studied its preamble. हमने preamble के बारे में पढ़ा, preface के बारे में, as well as हमने कुछ terms है, संज्ञाएं है, वो समझने की कोशिश की, जैसे सॉवरेन यानी सार्वभौम, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एंड रिपब्लिक. ठीक है. Then the goals expressed in the preamble are the characteristic features of our constitution as well. जो goals means aims जो है, जो उसमें express किए गए हैं, बताए गए हैं, means preamble में, वो क्या है? characteristics features of our constitution. हमारे constitution के वैशिष्ट्य है. Apart from these, the constitution also has other features. हमारे constitution पे और भी कुछ वैशिष्ट्य है. We shall try to understand these in the present chapter. और वही अभी हमें समझ लेनी है. Now, number 1, federalism. Federalism, federal. Federal means what? Federal means having or relating to a system of government in which several states forms a unity but remain independent in internal affairs. ठीक है. One of the important features of our constitution is the federal system. हमारे constitution का वैशिष्ट्य कौन सा है? Federal system. ठीक है. In countries with large territories and huge population, government is run by a federal system. हमारा जो देश है वो कैसा है? बहुत बड़ा है ना? Large territories and huge population. Government is run by a federal system. Ruling a large territory from a single capital city is not only difficult but may also lead to the neglect of some far-flung areas. See here, रूलिंग अ लार्ज टेरिटोरी यानी इतने बड़े प्रदेश पे राज्य करना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, फ्रॉम अ सिंगल कैपिटल सिटी, यानी एक ही कैपिटल सिटी रहेगी और इतने बड़े देश का राज्य कारभार देखना, ये बहुत ही कठिन बात है. बट मे ऑल्सो लीड टू द निग्लेक्ट ऑफ सम फार फ्लंग एरियाज. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि जो बहुत ही दूर दराज वाला एरियाज है, जो बहुत ही एक्सटेंसिव एरियाज है, उसकी तरफ निग्लेक्ट मींस दुर्लक्ष्य भी हो सकता है. People residing there cannot participate in the affairs of the government. वहां पर जो लोग रहते हैं वो अपना योगदान या सहयोग किसमें नहीं दे सकते? गवर्नमेंट में दे सकते. ठीक है. अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के कामकाज में सहभाग नहीं दे सकते. Therefore, governments function at 2 levels in a federation. इसलिए गवर्नमेंट जो है वो 2 लेवल पे काम करता है. The government at the center carries out tasks like defense of the entire country, foreign policy, establishing peace, etc. इसलिए क्या है, गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से फंक्शन अपना काम करता है? 2 लेवल पे करता है इन फेडरेशन में. फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट 2 लेवल पे काम करता है. ओके. द गवर्नमेंट एट द सेंटर कैरीज आउट टास्क लाइक डिफेंस ऑफ द एंटायर कंट्री, फॉरेन पॉलिसी, एस्टैब्लिशिंग पीस, एक्सेट्रा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट. यानी देखो, द गवर्नमेंट एट द सेंटर में जो गवर्नमेंट रहता है वो टास्क मीन्स वर्क, उनसे वर्क करता है, जैसे डिफेंस ऑफ द एंटायर कंट्री यानी पूरे देश की व्यवस्था देखना, देन फॉरेन पॉलिसी परराष्ट्रीय धोरण, देन एस्टैब्लिशिंग शांतता से व्यवस्था प्रस्थापित करना. और उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं. इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री.
Now, the government that oversees the administration of the region that we live in is called state government. State government means Rajya Sarkar. Rajya Sarkar के साथ the government that oversees the administration है ना, राज्य कारभार देखता है, शासन देखता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर रीजन का देखता है जहां पर हम लोग रहते हैं। जैसे हमारा महाराष्ट्र स्टेट है ना, इट लुक्स, इसलिए महाराष्ट्र स्टेट है यानी हमारे यहाँ स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है। तो जहां पर यूनियन टेरिटरीज है ना, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन रहता है, और जहां पर हम स्टेट्स है वहां पे स्टेट का राज रहता है। ओके, it looks after the administration of a particular state. For example, government of Maharashtra looks after the administration of the state of Maharashtra. And Maharashtra government के अंडर जितने भी जिले हैं उन सब का कारभार ये महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देखेंगे, ठीक है। Then the system of running the administration of a country cooperatively by the governments at two levels, making laws about different subjects is called federalism. See here, the system of running the administration of a country cooperatively by the government at two levels. देखो, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पूरे देश का राज्य कारभार स्मूथली चले, इसलिए उनको दो लेवल पे काम करना पड़ता है। मेकिंग लॉज, ठीक है, मेकिंग लॉज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फेडरलिज्म। यानी विविध सब्जेक्ट्स के ऊपर कायदा कानून तैयार करना, उससे भी क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर्स का विभाजन। The Constitution has divided the subjects for making laws between the union government and the state government. देखो क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारी जो राज्य घटना है उसने कुछ सब्जेक्ट जो है कायदे बनाने के लिए उसका डिवीजन किया है। तो कुछ सब्जेक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट को दिए हैं और कुछ सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। लेट अस सी व्हिच गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मींस टू गिव रिस्पांसिबिलिटी विथ व्हाट सब्जेक्ट्स, यानी कौन से गवर्नमेंट को कौन सी रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन 3 लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट दी है वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके, द फर्स्ट लिस्ट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। पहली जो लिस्ट है ना उसे क्या कहा जाता है, यूनियन लिस्ट। ओके, इट कंटेन 97 सब्जेक्ट्स ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉज। उसमें कितने सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 97, और उसके ऊपर गवर्नमेंट कायदा बनाती है। द स्टेट लिस्ट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू लेजिस्लेट अपॉन, यानी जो स्टेट लिस्ट रहती है उसके कायदे बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को रहता है, ठीक है। टू लेजिस्लेट मीन्स टू मेक लॉ। इट कंटेन 66 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस टू लिस्ट देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट, और एक समवर्ती लिस्ट रहती है, ठीक है, which contains 47 subjects. Okay, both governments can make laws on subjects included in this list. और ये लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट ने यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हुए कायदों का समावेश होता है। If a subject comes up that is not included in any of the list, the union government is entitled to make laws on it. अगर कोई सब्जेक्ट बाकी रह गया है जिसमें दोनों गवर्नमेंट ने लिस्ट नहीं बनाई है, तो वो काम किसका रहता है, उस सब्जेक्ट पे कायदा बनाने का यूनियन गवर्नमेंट का रहता है। दिस पावर्स आर टर्म्ड एज रेसिड्यूरी पावर। ओके, नाउ डू यू नो द डिवीजन ऑफ पावर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक। It enables the union government and the state government to bring about the country's progress by cooperating with each other. Yes, कोई भी देश का प्रोग्रेस कोऑपरेशन पे ही ज्यादा निर्भर रहता है ना। This also encourages participation of citizens in the administration of the country. और देश के कारभार में लोगों का पार्टिसिपेशन होना ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। Now, who deals with what subject? सब्जेक्ट्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। अभी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, वार एंड पीस, करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड। डिफेंस यानी सुरक्षा, फॉरेन रिलेशन यानी परराष्ट्रीय संबंध, वार एंड पीस युद्ध एंड शांतता, करेंसी यानी रुपी चलन, एंड देन इंटरनेशनल ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ओके, नाउ सब्जेक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर कायदा सुव्यवस्था, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा।
सब्जेक्ट्स विद बोथ द गवर्नमेंट, अभी दोनों के अंडर कौन से सब्जेक्ट आते हैं? एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पर्सनल लॉ, एजुकेशन एक्सेट्रा। ओके, नाउ make a list of the northeastern Indian states, name their capital cities. This is your homework. Okay, make a list of the northeastern Indian states. नॉर्थ ईस्ट साइड के जितने भी इंडियन स्टेट्स है उनकी लिस्ट बनाना और उनके जो कैपिटल्स है, कैपिटल यानी राजधानी, उनके नाम लिखना। ठीक है। Now union territories. In India there is a union government, 29 states governments and 7 union territories. कितने टोटल स्टेट है? 29 स्टेट्स। ठीक है, और यूनियन टेरिटोरीज कितनी है? 7 है। Make a list of states and their capitals as well as union territories and their capital. Okay. The union government controls the union territories. यूनियन गवर्नमेंट जो रहता है वो यूनियन टेरिटोरी की तरफ वहां का शासन देखता है। फॉलोइंग आर द 7 यूनियन टेरिटोरीज: न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। और कश्मीर की तरफ भी अभी यही दिखता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है वहां का शासन। ठीक है। नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने क्या प्रोवाइड किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम. ठीक है, संसद, पार्लियामेंट यानी क्या? संसद. In such a system, the parliament, that is the legislature, has the highest decision making power. उनको उन्होंने लिया हुआ डिसीजन जो है ना वो आखिरी माना जाता है. ठीक है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर. इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स, इंडिया के पार्लियामेंट में किसका समावेश होता है? इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. याद रखना, इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, ये तीनों ने मिलके अगर कोई डिसीजन लिया है तो फाइनल माना जाता है. The Council of Ministers that runs the administration emerges from the Lok Sabha and is answerable to the Lok Sabha for all its decisions. देखो क्या होता है कि the Council of Ministers यानी कैबिनेट, मंत्रिमंडल, ठीक है, दैट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, जो देश का कारभार चलाते हैं, राज्य कारभार, इमर्जेस फ्रॉम द लोकसभा, लोकसभा में बैठ के, एंड इज आंसरेबल टू द लोकसभा फॉर ऑल हिज डिसीजंस. इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द डिस्कशन and debates that take place in the parliament have great significance. और वहाँ पे जो डिस्कशन या डिबेट होता है, कोई इशू, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट को लेके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. Now independent judiciary. Judiciary यानी क्या? न्यायदान का काम करना. The Indian Constitution has created an independent judiciary. The disputes यानी क्या? Conflict, झगड़ा. The disputes that cannot be resolved mutually are referred to the judiciary. जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या फिर डिस्कशन से जो सॉल्व नहीं किया जाता है वो यहाँ पर लाया जाता है. ठीक है. The court hears both the contesting parties, looks into the subject injustice if any and gives its judgment. फिर कोर्ट क्या करता है? दोनों की पिटीशन जो है उनके पास आई है उसके ऊपर ध्यान देता है और बाद में ये भी देखता है कि किसी के ऊपर अन्याय ना हो और जजमेंट का काम करता है, न्यायदान का. दिस हैज टू बी डन इम्पार्शियली. और ये सारा काम कैसे होता है? इम्पार्शियली. ठीक है, निष्पक्षपात. The Constitution has made several provisions to ensure that the judiciary remains more and more independent. Constitution ये भी देखती है कि न्यायदान का जो काम है वो इंडिपेंडेंटली हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. जजेस जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट. ओके. इट इज नॉट इजी टू रिमूव द जजेस फ्रॉम देयर ऑफिस. कोई भी जजेस को उसके पद से इतने आसानी से नहीं हटाया जा सकता, नहीं निकाला जा सकता. ओके. Now, single citizenship. The Indian Constitution has granted a single citizenship to all Indians, that is Indian citizenship. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी भारत की राज्य घटना, उन्होंने क्या गारंटी दी है? अ सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल इंडियंस. जो भी इंडिया में बाय बर्थ है उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है. ठीक है. Now, process of amending constitution. There comes a need to make changes or amendments. Amendments means improvement or alteration. ठीक है, improvement or alteration. That is amendments means changes, बदलाव. There comes a need to make
changes or amendments in the provisions of the constitution due to changing circumstances. अब जैसे जैसे परिस्थिति में बदलाव आता है वैसे वैसे यहाँ पर भी क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, प्रोविजंस की जाती हैं. बट फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन में लीड टू अ सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी. लेकिन अगर बहुत बार एक ही टॉपिक पे चेंजेस किए गए होंगे तो वो इंस्टेबल सिचुएशन आ जाती है, अस्थिर. The procedure for amendment is specified in the constitution itself so as to ensure that an amendment is made only after giving it a careful consideration. बाद में जब डिसीजन लिया जाता है ना तब वो पूरे पॉइंट्स कंसिडर करके मतलब सोच विचार करके लिया जाता है, ठीक है. अगर कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो the procedure for amendment in the constitution is unique. It is neither too difficult nor too easy. More scope has been provided for giving more consideration and thought to important amendments. ठीक है, ये बहुत ही इजी भी काम नहीं है लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है. More scope has been provided for giving more consideration, यानी सोच विचार के लिए भी स्कोप है, and thought to important amendments, और जो बदलाव जो चेंजेस किए गए हैं उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है. द प्रोसीजर इज आल्सो फ्लेक्सिबल टू इंश्योर दैट जनरल अमेंडमेंट्स कैन बी ब्रॉट अबाउट इजीली. ओके, नाउ it's your homework. How many amendments have been made to the Indian Constitution till date? Now, Election Commission. You must have read about the Election Commission in the newspapers. Yes, since India has adopted a democratic form of government, people have to elect their representatives periodically. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं कुछ साल के लिए. फॉर दिस द इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड इन द फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर. लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, और वो भी कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में, ठीक है. ओनली देन, यानी किसी के डर की वजह से वोटिंग नहीं होना चाहिए या किसी का उसमें वोटिंग करते वक्त इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप, ठीक है, यानी फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में इलेक्शंस होने चाहिए. only then will the citizen be able to elect a candidate of their choice without any fear or pressure. और तभी जाके हम अपना कैंडिडेट, हम मींस पीपल ऑफ इंडिया अपना कैंडिडेट चुन के भेज सकते हैं विदाउट एनी फियर और प्रेशर. If the government were to conduct elections, there might be no guarantee of such free, fair, and just atmosphere for the election. Hence, the Constitution has entrusted the responsibility of conducting election to an independent machinery. क्या होता है देखो, अगर गवर्नमेंट इलेक्शंस कंडक्ट करती है ना तो कोई भी गारंटी नहीं है कि वो इलेक्शंस फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में होंगे. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंटरेस्टेड मींस टू गिव रिस्पांसिबिलिटी टू एन इंडिपेंडेंट मशीनरी. ठीक है, दिस मशीनरी इज नोन एज द इलेक्शन कमीशन. इसलिए इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया है. सेटअप मींस एस्टैब्लिश किया गया है किसके लिए, इलेक्शंस के लिए. ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑल इलेक्शंस इन इंडिया रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन. और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है ना इंडिया में होने वाले इलेक्शंस की, वो किसके ऊपर रहती है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर. ओके, the Indian Constitution had some important characteristics features. In this chapter we have studied only some of the important features. Another important features of our Constitution is the exhaustive provisions and sampurna pravadhan of fundamental rights. We shall study these in the next chapter. Okay, now once again come to the page number 73. See page number 73. Do you know? See the note of 50 rupees, Bharatiya Reserve Bank currency note. Okay, you have surely seen currency notes. Okay, the words guaranteed by the central government are printed on currency notes. देखो वहां पे लिखा है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, है ना, वहां पे देखो. If you have seen the badge on the uniform of a policeman, it reads महाराष्ट्र पुलिस. अगर आपने महाराष्ट्र पुलिस का यूनिफॉर्म देखा होगा तो उस पे क्या लिखा रहता है,
Maharashtra Police. You must have surely come across the following: Indian Railways and Maharashtra State Road Transport Corporation. Okay, this means that in our country government functions at two levels. इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट जो काम करते हैं वो दो स्तर पे करती है, लेवल यानी स्तर. One is the central government and the other is the state government. That is Maharashtra state government, Karnataka state government, Gujarat state government, Bengal state government, etc. Okay, now here our lesson is over now, and your homework is that make a list of the northeastern Indian states and their capitals, as well as make the list of states, all the states of India, their capitals, union territories, and their capitals also. Okay, and read lesson carefully, and tomorrow we will write question answers of this lesson. Till then, bye bye. Take care.